Now let's proceed toward the last panel of this session. Reservoir of talent. You have to wait because all these panelists are from you. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Students normally aim for good grades, but great students aim to acquire knowledge that can bring change in their life, and by virtue of it, they can contribute in the society to make it a better place. Today we have a special panel of passed out students who turn their capabilities into realities and have become example for others. So let's have a discussion with them to know about their success stories. So I would like to call all the panelists on the stage. I would request Ms. Mamoona Abdullah to come on stage and have your seat. Ms. Mamoona Abdullah is a fitness trainer and consultant, ISSA certified nutritional trainer. Then I request Yamna Salim to come on stage and have her seat. Yamna Salim, football coach in Special Olympic Pakistan, Vice President, University of Karachi Sports Society, former Director at University of Karachi Sports Society and physical trainer. Then I request Ms. Nida Siddiqui to come on stage and have your seat. Ms. Nida Siddiqui is a Geo News reporter, sub-editor in Jung Group of Companies. Aliza Fatma from CSR, Kanza Hassan from CSR, and Javeria Imran from CSR. Please come on stage and join this panel. Moderator Fiza Abbas, I would like to call you again to moderate this session. Please come on stage to moderate this panel along with Fiza Abbas. Once again, pairing. So I guess once again you have to bear me and Fiza moderating the panels. It is an honor to have all of you here since you are like recently graduated students from the University of Karachi. So I would like the audience to pay particular attention. Why? Because यहाँ पे सारे students ही बैठे हुए हैं और या तो we are at the verge of graduating या हमने newly join किया university को. So we are going to be discussing the university lives basically and the perspective of being a girl student here at the University of Karachi. So first of all, my question is to Aliza Fatma Hashmi. She is a journalist at Dawn and she has been featured as an interviewee at The Voice of America. Why? Because she worked for the Afghan refugees who were dispatched. My question to you, Aliza, is that what challenges did you face in the field of journalism when you were pursuing it as a recently graduated student? Am I audible? Okay, so challenges, so I think this is really not the question that I would like to answer अभी because बहुत लंबी बात है, but अगर आप बिल्कुल मुझसे important points पूछें तो मैं आपको ये बता दूँ कि it's not easy to be a female journalist on the field, and I think Fiza would agree with me because Fiza herself is a journalist and you yourself are a journalist and Nida is also a journalist, so I know this for a fact कि when you are reporting on the field, be it any field, it is not easy. हर तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं. सबसे बड़ा मसला आपके पास ये आता है कि रात देर तक आप बाहर नहीं रह सकते. योर पेरेंट्स विल नेवर अंडरस्टैंड कि 9 से 5 की नौकरी नहीं है सहाफ़त. आपको घर वापस अपने टाइमिंग पर नहीं आना. आप घर वापस तभी आएंगे जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. जैसे मैंने मेडिसिन पढ़ी है एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फार्मेसी, बट आई डिड नॉट लाइक I did not like it as a professional field, so I decided to pursue journalism because I think and I have been told by people in the field that I was great at it, and I think yes I am. तो it was also a challenge कि मैंने जो पढ़ा था मैंने उसे pursue नहीं किया, मैंने कुछ और pursue किया, which I think is a very brave step for a girl. क्योंकि अगर आपने medicine पढ़ी और आप medicine नहीं pursue करे तो everybody would talk about you, everybody would ask you कि तुम पागल हो, तुमने 5 साल पढ़ाई की और फिर तुमने छोड़ दी वो field. So challenges बहुत सारे हैं. I have lost a lot in the way, like a lot of times my work has been doubted. A lot of times I've been told by my seniors that I should not be in the field because I was either trying to
I was either trying to sabotage their work, ठीक है, according to them, or I was not enough. But I just feel that there is this one thing that my mother has told me while I was growing up, and my mother has been the most empowered woman I know because she raised 5 kids alone, and out of those 5 kids, 4 were daughters. So she told me always that what you need to do is to work hard, work sincerely, and then the rest is in Allah's hands. So whoever is listening today, whoever is trying to get into the field, and even if you are not going into journalism, be it any field, make sure that whatever you do it with a sincere heart. You do what it takes. This is what I tell people, and this is what I have been told. You do what it takes. So yeah, these are the challenges, but honestly speaking, if you are willing to go through those, you are going to lose a lot, but you are also going to win a lot. अब मैं आप सब से आपकी जर्नीज के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग इस यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं. आप लोगों की जर्नी से इन सब बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी. तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए मुख्तसरन कि यहाँ से पास आउट होने के बाद आपने क्या किया, क्या अचीवमेंट्स रही, क्या चैलेंजेस रहे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा ताल्लुक़ जंग अखबार से है. मैं एज अ जर्नलिस्ट वहाँ जॉब करती हूँ. जैसे कि फ़िज़ा ने मुझसे पूछा कि अपनी जर्नी के बारे में बताएं. 2014 में लकीली मैंने वुमेन स्टडीज़ से मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने अपने करियर का आगाज़ एज अ जर्नलिस्ट जंग न्यूज़पेपर से किया. और इत्तफाक ऐसा हुआ कि मुझे वुमेन की ही फील्ड मिली कि मैं वुमेन के इश्यूज़ पे ही काम करती हूँ, उनकी एम्पावरमेंट, उनकी स्टोरीज़ पे काम करती हूँ. और बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिनकी स्टोरीज़ को हमने शेयर किया, और मुझे बहुत खुशी होती है. एक वक्त था कि हम ऐसी खातून तलाश करते थे जिनकी वो स्टोरी को हम आवाम के सामने ला सकें, बट अब ऐसी बेतहाशा ख़वातीन हमारे सामने हैं जिनकी स्टोरीज़ इतनी सक्सेसफुल है. हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पास इस फील्ड में भी खातून है, इस फील्ड में भी खातून है. पहले बहुत सारी ऐसी शोबे थे जहाँ खातून नहीं दिखती थी. आज हमें उन शोबों में इतनी ख़वातीन दिखती हैं कि हम उनकी स्टोरीज़ तो छापने के लिए जगह नहीं होती, बस खातून की स्टोरीज़ ख़त्म नहीं होती. रही बात जर्नी की, तो मैं आप अगर चैलेंजेस की बात, जैसे कि फ़िज़ा ने कि क्या चैलेंजेस सहाफ़त में फ़ेस करने पड़ते हैं, जैसे अलीज़े ने कहा कि वक्त की पाबंदी हम सहाफ़त में नहीं कर सकते, ये 9 to 5 जॉब नहीं है. और इसी तरह एक जैसे क्राइम रिपोर्टिंग है या पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग में खातून को एक वक्त था कि पीछे रखा जाता था कि क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, ये खातून का शोबा नहीं है. बट फॉर्चुनेटली अब इस शोबे में भी खातून काम कर रही हैं. मेरी बहुत सी दोस्तें ऐसी हैं जो क्राइम रिपोर्टिंग करती हैं, और उस दौरान वो बहुत दफ़ा हादसों का भी शिकार हुई, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हारा. सब उस अज़म को लेके आगे बढ़ते रही. आज अपने प्रोफेशन में बहुत आगे अपना नाम कमा रही हैं. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मैमुना है, मैमुना अब्दुल्ला. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र बहुत अदा करती हूँ कि मैं अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया. देन माय टीचर्स, जिन्होंने इस काबिल समझा कि हमें यहाँ बुलाया जाए आप सब लोगों के लिए. अच्छा, मेरी जर्नी कुछ इस तरह से है कि मैंने अपना 24 kgs अपना जो है फैट लॉस किया है. मुझे PCOS था, और मेरी जर्नी की गवाही मेरे टीचर्स देंगे इनके सामने हुई. और मुझे अच्छी तरह याद है, जो हमारा डिपार्टमेंट का कॉरिडोर है, मैं वहाँ थी, और आई थिंक मेरा 3rd सेमेस्टर था जब मैं अपना फैट लॉस कर चुकी थी. और फिर गैप के बाद जो सेमेस्टर ब्रेक होता है, उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, तो मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग कहीं जाने का हमारा प्रोग्राम था. और जब मैं आई हूँ, और सारे लोग सीनियर्स और जितने थे जो जानते थे, मोटी, जिन्होंने मुझे देखा था, यार ये इतना वजन कम कर लिया, कैसे? फिर सब आए, कैसे वजन कम किया, टिप्स दे दो, ये दे दो, वो बता दो, किस तरह से किया, डाइट बताओ, क्या क्या किया, ये सब बताओ. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी बहुत अच्छी रही, लेकिन इजी नहीं थी. फिर उसके बाद जो है मैंने 2018 में जो है यहाँ से ग्रेजुएशन की है कंप्लीट. फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हेल्थ फिजिकल एजुकेशन में. अच्छा, जब मैंने अपना फैट लॉस कर लिया, उसके बाद जो है मैंने सोचा कि यार नहीं, अब ट्रेनर बनना है, क्योंकि जो मेरा ट्रेनर था जिन्होंने मुझे ये करवाया, तो उन्होंने बोला भाई बहुत क्वालिटीज़ हैं. तो फिर हमने जब ये स्टार्ट किया, उसके बाद हेल्थ फिजिकल एजुकेशन में चले गए, वो तो था ही स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट. फिर वहाँ से ट्रैक एंड फील्ड ज्वाइन करी. ट्रैक एंड फील्ड में हम मैराथन खेली, कोरोना से पहले वाली, जिसमें पोजीशन रही मेरी, और जो है सर्टिफिकेट मिला, मनी मिली, कैश प्राइज मिला.
एंड देन फिर उसके बाद कोविड, पूरे 2 साल जिस तरीके से गए हैं आप लोग सबके सामने। फिर उसमें एक ही चीज थी कि जिम्स तो बंद थे सबके, तो फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वहां से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है ट्रेनर बने। वही बात जो इन्होंने बोली 9 to 5 वाली, हमारे यहाँ पे भी यही होता था, मगरिब का अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर आप जो है वो रोड्स पे निकलते हैं तो इतना ट्रैफिक होता है कि अगर 1 मिनट भी अगर लेट हो जाओ ना तो बहुत सारे सवालात, कहाँ थे, किसके साथ थे, जल्दी आओ। ऐसा हुआ कि मैंने जो है टाइकोंडो ज्वाइन किया, 2 दिन के अंदर टाइकोंडो मुझे छोड़ना पड़ गया, मेरा ट्रैक एंड फील्ड पे जाना बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है, बैरियर्स बहुत आते हैं, लेकिन वही वाली बात कि जो है आपने अपने गोल्स सेट करने चाहिए और आपको उस चीज पे रहना चाहिए डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और फिर इंशाल्लाह जो है आप जब ये सब चीजें अपनी करते हैं तो आपको सक्सेस ऑलरेडी मिलती ही रहती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम यमुना सलीम, आई एम अलुमनाई ऑफ वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट। अच्छा, तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारी ऑडियंस है वो वुमेन स्टडीज़ की ही है। तो अच्छा, आई एम अ फुटबॉलर और जो है मेरा जो अच्छा मेरी जो जर्नी रही है स्पोर्ट्स की, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो मेरी जो जर्नी रही है वो स्पोर्ट्स की स्टार्ट ही मतलब कराची यूनिवर्सिटी से हुई थी। कराची यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो है वो मुझे पता नहीं था कि वेयर शुड आई गो। लाइक मेरे अंदर जो एक फुटबॉल जो था ना, वो एक बस था कि मतलब खेलना है एंड ऑल ना। तो जब वो स्टार्ट हुआ, मैं आई यहाँ पे, तो मैंने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगी, बट कोई प्रॉपर चैनल नहीं था एट दैट टाइम, लाइक बैक 4 or 5 years बिफोर ना। तो हमारी जो सोसाइटीज़ थी वो भी स्टार्ट हो रही थी, अंदर वर्ष थी कि मतलब स्टार्टिंग पर थी और मतलब इतना ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं थी। दैन आई जॉइन द थिएटर सोसाइटी, कराची यूनिवर्सिटी थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी, जहाँ से मुझे फिर चैनल मिला अपना कराची यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सोसाइटी का। एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है फिर हमारे ट्रायल्स हुए एंड ऑल, एंड देन जो है वो हम लोगों का स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हुआ तो HPSS सर राशिद होते हैं वहाँ पे, तो मतलब हमारी जो टीम्स जाती हैं ना नेशनल लेवल पे कराची यूनिवर्सिटी की, तो वो फाइनलाइज होती हैं। तो अच्छा, मैंने बोला कि चलें ठीक है जी, जाते हैं। पहले कभी लाइक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं रहा कि लाइक फील्ड में जाके फुटबॉल किस तरह खेलना है। हाँ, खेला था, थोड़ा बहुत खेला था, बट यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद फिर जो है अपना ट्रायल्स हुए, सब कुछ हुआ। अच्छा, फिर टीम बन गई हमारी। फिर पता चला कि जो है वो भाई लास्ट 20 years से जो है वो फुटबॉल वुमेन टीम तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कराची यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, लड़कियों की फुटबॉल टीम है ही नहीं। और अभी भी आई गेस मोस्टली को नहीं पता होगा कि जो है वो फुटबॉल टीम इज़ हेयर, और है भी तो मोस्टली लड़कियाँ जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। खेलना है उन्होंने बैडमिंटन ही है, बैडमिंटन खिला लो बस, जिम में जाएंगी 5 मिनट बैडमिंटन खेलेंगे, स्पोर्ट्स हो गया। खैर, तो वो हमने स्टार्ट किया और उसके बाद जो है वो फिर हमें बोला, मतलब बहुत बैकलैश मिला ना कि किस तरह करोगे, और जो है मतलब नहीं होगा, 20 years है, मतलब एक रिकॉर्ड बना हुआ है और लड़कियां किस तरीके से जीत सकती हैं, वो तो जीत ही नहीं सकती ना, मतलब नेशनल लेवल पे या कहीं भी। तो और फुटबॉल में स्पेसिफिकली तो जो है बस फिर उसके बाद हमने वो एक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ था वो ब्रेक किया। आई वॉज द कैप्टन ऑफ दैट टीम एट दैट टाइम, और जो है वो ब्रेक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल ओवर द सिंध में जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी, लाइक 15 to 20+ यूनिवर्सिटीज़ एट दैट टाइम थी, और उनमें से हमारी फर्स्ट पोजीशन बनी थी एंड वी वर क्वालिफाइड फॉर द लाइक सेमीफाइनल एंड फाइनल्स आगे। तो ये मेरी लाइक बहुत ही स्टार्टिंग की बेसिक जर्नी थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। और जो है आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारे पैनलिस्ट हमसे पहले बैठे हुए थे यहाँ पे, दे आर लाइक हम तो मतलब अभी स्टार्टिंग वर्ष पर हैं और दे आर वेरी वेरी लाइक क्वालिफाइड ऑल ऑफ देम। और हम लोगों को ये चाहिए पर्सनली कि जैसे इन सब ने बोला कि डिटरमिनेड रहना चाहिए, प्लस ये कि हमें जो है वो अपने जो गोल्स है ना उसे क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि अनटिल अनलेस हमारे गोल्स क्लियर नहीं है तो आई पर्सनली बिलीव कि कोई भी आएगा
आज हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, कल हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी, परसों में कुछ और। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं और हमें मूव टूवर्ड्स करना चाहिए विद द प्लान ए। अगर प्लान ए वर्क ना करे तो विद द प्लान बी, और प्लान बी वर्क ना करे तो विद द प्लान सी। लेकिन गोल जो है हमारा वो एक ही रहना चाहिए। हमारा मसला ये होता है, हम यहाँ पे आके हमने भी मतलब यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारा है और जो है वो हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जो है मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब अपने जो एक उनका मकसद होता है ना उससे हट जाते हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि हमें एज अ गर्ल, एज अ वुमेन एंड एज अ बॉयज एज वेल, कि हमें जो है वो अपने गोल पर डिटरमिन रहना चाहिए और जो है वो मतलब सारी चीज़ें हों, बट जो हमारा गोल है पर्सनली उसे हम जो है वो अचीव करके ही निकलें। जब हम इस प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग गए हैं वो पूरा, आप देखें तो पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं। आपके सामने अभी लाइव एग्जांपल्स मौजूद थी। दे ऑल वर लाइक ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कराची यूनिवर्सिटी और दे आर द पार्ट ऑफ कोर पाकिस्तान यू नो थिंग। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आई एम नॉट ग्रेजुएटेड येट और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं सारे एलुमनाई के साथ यहाँ बैठी हूँ, मुझे मौका मिला है बात करने का। तो आगे की जर्नी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पीछे की जर्नी ज़रूर ऐसी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे या तो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बैक इन 2016 व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, एग्जाम्स होने वाले थे, थोड़े पहले की बात है। आई फेल रियली इल, आई फेल इनटू निमोनिया। वो इतना ज़्यादा था कि आई गॉट ऑन वेंटिलेटर। डॉक्टर सेड शी इज़ गॉन, शी इज़ डन। बट बीइंग ऑन वेंटिलेटर फॉर 11 days, I came back. And when I came back, I couldn't even move my fingertip. ये भी नहीं कर सकती थी मैं। I was completely paralyzed. जो लोग मेडिकल फील्ड के हैं वो जानते होंगे कि वेंटिलेटर के बाद क्या चीज़ें होती हैं। बट इट वॉज माई विल पावर, आई वुड से, एंड द सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल फोकस ऑन द फ्रेंड्स, कि सिर्फ फैमिली की सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास ऐसे टीचर्स, ऐसे फ्रेंड्स मौजूद थे जिन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया वापस उठने में। इट टुक 6 months, मैं वापस खड़ी हो गई। मेरे एग्जाम्स में सिर्फ 4 महीने बाकी थे 9th क्लास के। सब ने मुझे कहा पीछे हट जाओ, वापस से रिपीट करो। मैंने नहीं मानी, मैं पीछे हो ही नहीं सकती थी। मैंने तैयारी की रातों को जाके, एंड जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स में थी 9th क्लास के बोर्ड में। अच्छा, यहाँ से फिर चीज़ें कंटिन्यू हुई। बचपन से मैं गोल लेके चल रही थी जो शायद बहुत सारे लोग लेके चलते हैं, मेडिकल की फील्ड में जाने का। मैंने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की और मेरी सिलेक्शन हुई फॉर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट जब जो सारी चीज़ें मेरी हुई थी हेल्थ से रिलेटेड, आई वॉज डायग्नोज्ड विद CVID. CVID इज कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी. इट मीन्स यू आर इम्यूनो डेफिशिएंट, यू लैक इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम उर्दू में कहते हैं। सो एक ऐसा शख्स जिसके पास खुद इम्यूनिटी नहीं है, वो कैसे दूसरे मरीजों के साथ कांटेक्ट में रह सकता है, दूसरों के साथ काम कर सकता है। सो वो वक्त था कि जब मंजिल मेरे इतने करीब थी लेकिन मुझे उससे पीछे होना पड़ा। फिर मैंने दूसरी फील्ड्स के बारे में रिसर्च किया, एंड देन एकदम इतना बड़ा सोच आया कि मैं यहाँ पे KU मैंने एडमिशन लिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद ऐसे आ जाते हैं कि उनको पता नहीं होता है या कुछ, लेकिन मैंने प्रॉपर रिसर्च की और फिर मैं यहाँ पर आई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अगर मैं मेडिकल छोड़ के आ रही हूँ तो ये वो चीज़ें शायद जो मुझे मेरी रिप्लेसमेंट दे सकती हैं। और अगर अब वापस से 8 साल बाद मैं अपने फैसले पर रख के सोचूं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला था कि मैंने अपनी फील्ड चेंज की। हमें उस टाइम लगता है कि शायद हम जो चाहते थे हमें नहीं मिला तो वो बहुत बुरा हो गया, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला हमें जब कोई दूसरी चीज़ देता है ना तो आगे जाके हम रियलाइज़ करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे KU में आके जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है ना, शायद ही अगर मैं किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाती तो मुझे वहाँ मिलती। स्टूडेंट सोसाइटीज़ के साथ काम करना, स्पेशली जब मैं CSR का पार्ट बनी, मैंने डिबेटिंग सोसाइटी में भी काम किया है, तो वहाँ जो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, जिस तरह से मैंने काम किया, तो आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो फैसला किया उस टाइम वो बिल्कुल ठीक था और बिल्कुल अल्लाह ताला की रज़ा उसमें शामिल थी। अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे लेकर आए तो उसकी कोई वजह थी जो कि मुझे आज दिख रही है। तो इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे के लिए भी रास्ता अल्लाह ताला ही खोलेगा, और ये आप सबके लिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि जो चाहते हैं कुछ और करना है लेकिन कुछ और हो जाता है। तो आप लोग उस चीज़ में ये सोचें कि अल्लाह ताला ने कुछ सोच के आपको यहाँ डाला है, तो आप उस चीज़ में अपने लिए रास्ता तलाश करें कि अगर अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, किसी वजह से आया हूँ, तो अब मुझे वो वजह तलाश करनी है कि वो क्या वजह है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। Thank you so much to all the panelists, to all the students who have been attending. We have Alize Fatma, ये हमारी pillar है honesty की। यहाँ पे हमारे पास ये perseverance की example है। Then we have Yamna, who has been dedicated towards her physical training. Then we have what's your good name? Yeah, Yamna, your name. Memuna, yes, Memuna and Yamna, both of them are in the field of physical training. So both have been dedicated towards what they are working for. They are passionate for what they are working. The message that this panel holds for you students is that no matter what hurdles you face, you can always make it, just like these students who are sitting in front of you, just like all the panelists who were in front of you. वो लोग भी एक time पे students ही थे आप लोगों की तरह, and all of them made it, so all of you will eventually make it as well. And here were two moderators जो हर वक्त आ जाते हैं stage पे. So now we are concluding this panel and the last panel of this program as well. So thank you all of you, and over to you, ma'am. Thank you. Now I would like to call final year students who always actively participate in departmental activities and have tremendous record in academics and in co-curricular activities. They will present presentation on gender-based violence, GBV. Rida Rahman, Manail Waqt and Maha Aslam, please come forward. So, respect yourself by respecting others. Assalamu alaikum. This is me, Rida Rahman, from the final year Women Studies. So, how many of you know that what is gender? Kindly please raise your hands. कोई मुझे बता सकता है that what is gender? ओके, ठीक है, काफ़ी हैंड रेज हुए हैं, तो बाकी लोगों को हम लोग बताते चलें कि जो जेंडर होता है वो हमारे सोसाइटल रोल्स जो हमारी सोसाइटी हमें दे देती है, डैट अगर वो मैन है तो वो सिर्फ बाहर का काम करेगा और कमा के लाएगा, वो घर का कोई काम नहीं कर सकता, और अगर औरत है तो वो सिर्फ घर संभालेगी, वो कोई बाहर का काम नहीं कर सकती। तो ये हम लोग एक जेंडर की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर, सेक्स या उसकी आइडेंटिटी के बेस पर उसके ऊपर वायलेंस करना इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट किसी एक ग्रुप के ऊपर इंडिविजुअली या फिर हम लोग अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर। हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि आप लोग अपना हैंड रेज करें, किसको ये पता है कि कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के बीच में डिफरेंस है या नहीं है। कोई हैंड रेज करेगा? नो वन। तो कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के बीच में एक डिफरेंस है, क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट से जो एक्सट्रीमिज्म हो जाती है और फिर वो कन्वर्ट करती है वायलेंस पे, जिसकी वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हमारे पास हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिकिंग होती है। उसके बाद इस चीज़ को रोकना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, फेयर इतना है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इतनी है कि उसको हम लोग रोक नहीं पाते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को एड्रेस करें। और एक और आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि लाजमी नहीं है कि अगर आपके सामने कहीं जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है तो आप कहें कि भाई हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं, या फिर हम लोग जो है ना इसको अभी थाने लेकर चलते हैं और केस कर देते हैं। अगर आप अपने किसी मोहल्ले में अगर आप 4-5 लड़कियां इकट्ठी होकर उस घर पे जाएं, आपको जहाँ से मारपीट की आवाज़ें आ रही हैं, आप जाके डोर नॉक करें और वहाँ पे जाके वो उस औरत को बोलें कि क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ,
तो उसको इतना हौसला हो जाएगा कि मेरे साथ कोई खड़ा है। उस बंदे के अंदर भी इतना सा हौसला कम हो जाएगा कि इसके साथ कोई खड़ा है, इसके ऊपर कोई अब हाथ नहीं उठा सकता। तो इतना सा हमें भी करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ यूथ हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपने कम्युनिटी के अंदर देखें। अगर हम अपने लिए फ़ायदा चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी फ़ायदा देखें। नाउ ओवर टू मनाइल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मनाइल। तो हम ये देखते हैं कि हमने जीपीवी मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए हम ऐसे कौन से रिस्पॉन्सेज या कौन सी ऐसी सेफ्टी रख सकते हैं जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके और आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। जैसे सबसे पहले जब वो एक ऐसे ट्रॉमा से बाहर आते हैं तो हमारा सबसे मेन काम ये है एज अ रिस्पोंडेंट कि हम उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें, सेफ्टी कंफर्ट्स, क्योंकि ट्रॉमा से बाहर आना मुश्किल काम है। तो हम जब उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपनी दूसरी थिंकिंग के अंदर आती है कि हाँ मैं आगे काम कर सकती हूँ। सेकंड ये कि हम उनको ऐसी कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट्स दें, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स या उनको कोई स्किल आती है तो उसको इन्हेंस करा जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, और उनके जो भी मैटर है उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ताकि फ्यूचर के अंदर उनके पास्ट ट्रॉमास इंक्लूड ना हो। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जीपीवी के अंदर हम और ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें बहुत सी औरतें आती हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमारी मेल एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो। उसके लिए हम हमारे स्टीरियोटाइप्स और हमारे नॉर्म्स को चैलेंज करके आगे बढ़ें और मर्दों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि हमारे साथ जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं वो हमारे लिए शेल्टर बन के आगे आएँ और वो हमारी इन चीज़ों में साथ दे सके, क्योंकि जब हमारे प्रोटेक्टर्स हमारे साथ होते हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथनिंग में ये करेंगे हम कि हम एक ऐसे बहुत सारे लॉज और बहुत सारे पॉलिसीज़ हमारे पास मौजूद हैं जीपीवी से रिलेटेड, और ताकि हम उसके ऊपर जो अवेयरनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और उनके ऊपर काम कर सकें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है इन चीज़ों के ऊपर। तो हम बहुत सारी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे और भी और रखते रहेंगे ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाते रहें। नाउ ओवर टू महा। ओके, तो जैसे हम लोगों ने अभी इनसे ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में इतना सब कुछ सुना, तो अब हमें इसको एलिमिनेट कैसे करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ ऐसे कोलैब्स करें कि हम अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करें जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स टू पब्लिक सेक्टर्स हों। इसी तरह हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिटी हम ही हैं और हम ही अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंगेज हों ताकि हम एड्रेस कर सकें उन औरतों को जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की शिकार हैं। और हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन में रीजनली और ग्लोबली पार्टनरशिप्स क्रिएट करें जिससे हम नॉलेज शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकें। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है वो हेल्पलाइंस हैं, जैसे कि मैम मलका ने बताया औरत फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, इस तरह मददगार नेशनल हेल्पलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी सारी हेल्पलाइंस हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन सारी हेल्पलाइंस को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो अगर कोई औरतें इन चीज़ों की शिकार हैं तो वो उनको पता चल सके कि ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जिस पे वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं और हेल्प ले सकती हैं। तो आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। तो मैं इस सब को कॉन्क्लूड करना चाहूँगी एक कोटेशन के साथ। लेट्स रिमेंबर द ग्रेटेस्ट वायलेंस इज नॉट नेसेसरीली फाउंड in war zones or on battlefields, but often within the silent struggles of those around us. Let's stand together to combat gender-based violence, for in doing so, we reclaim the dignity and rights of all humanity. Thank you so much. Now I would request Professor Dr. Asma Manzoor, Dr. Hurul and Dr. Nausheen Raza for shield distribution. Please, ma'am, please come on stage. To all the panelists and the presenters, Ms. Alize Fatma, please come forward and receive your shield. Ms. Yamna Salim, please come forward to receive your shield. And lastly, Ms. Javeria Imran,
please come forward to receive your seat. My sincere thanks to all the panelists and moderators to make our event special and sharing your valuable thoughts. Last but not least, I would like to acknowledge the enthusiasm of audience for making the seminar a huge success, and I also thank all the volunteers for taking their participation as pride and honor for themselves as a student of Center of Excellence for Women's Studies. Thank you. Then I would request Dr. Asma Mansoor for the vote of thanks.